خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے جیرمیہ نبی کی جو سیریز ہے اس کو سیکھ رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے 50واں پروگرام ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری اس بات کے لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کی اسٹڈی کو نہایت ہی پیشنٹلی خداوند کے حضور سیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر میرے لیے اس کو سمجھانا سکھانا آسان نہیں تھا، اور ڈیورنگ دا کورس آف دا اسٹڈی اس بات سے مجھے کافی تقویت ملی کہ آپ اس کو نہ صرف سنتے ہیں، اگرچہ مجھ سے کبھی تاخیر ہو جائے پروگرام شیئر کرنے میں، تو بھی آپ خداوند کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، اس کتاب کی جو آڈیو فائلز ہیں ان کو خوبصورتی سے ویڈیوز میں یوٹیوب پر بھی شیئر کیا جا رہا ہے۔ اب وہاں سے بھی اس آڈیو کو، اس کتاب کی بائبل اسٹڈی کو سیکھ سکتے ہیں۔ ہارون خان میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر آپ اس جیرمیہ سیریز کی جو پلے لسٹ ہے اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جیسے میں نے کہا، اس کتاب کی اسٹڈی کیوں آسان نہیں ہے، کیوں ریئر ہے، کیوں نایاب ہے، کیونکہ عزیزو بہت سے لوگ اس کتاب کی خشکی سے، دی ڈرائی نیچر آف دا بک، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ پھر چونکہ چیزیں کرونالوجیکل نہیں ہیں، ترتیب سے نہیں ہیں، اس لیے بھی بہت سے اساتذہ اس کتاب کی اسٹڈی سے دور رہتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو کین ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس یہ بلیسنگ نہیں آتی۔ سو اس بات کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں، پاک روح کے لیے جو ہماری استاد ہے، جو حکمت کی پاک روح ہے۔ اور میں نے کوشش کی ہے کہ ہم بے شک جیرمیہ کی بک ہمارا مین فوکس ہے، لیکن ہم بادشاہوں کے تواتر سے، کیونکہ اگر ہم بادشاہوں اور بادشاہتوں کے تواتر میں سیکھیں گے تو ایک تو بات کرونالوجیکل ہو جائے گی، ترتیب سے ہو جائے گی، اور اس حوالے سے اگر ہمیں یرمیہ سے پہلے یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کرنا پڑا اور یرمیہ کے بعد ازیکیل میں سے یعنی حزقیل میں سے بھی کچھ سیکھنا پڑا تو ہم رکیں گے نہیں۔ لیکن مین کرکس، مین فوکس جیرمیہ ہی ہے۔ پر میں نے کوشش یہ کی کہ بجائے ہم آیت با آیت جائیں، ہم بادشاہوں کے تواتر سے، ان کے فوکس، ان کے دور حکومت، ان کے حوالے سے جو نبوتیں خداوند ٹائملی فراہم کر رہے ہیں ان کو سیکھیں، ان سے اپنے لیے سبق اخذ کریں، اپنے لیے سیکھیں، آج کل کے زمانے کے حوالے سے، اینڈ ٹائمز کے حوالے سے سیکھیں، تاکہ ہم خداوند کی مرضی سے آشنا ہو سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہوں، اس پر آمین کہنا، اس کی فرما برداری کرنا۔ بہت سے لوگ خداوند کی مرضی سے آشنا ہیں، اگرچہ بتھیرے خداوند کی مرضی سے ناواقف ہیں، اور ہمارا پروگرام خداوند کی مرضی سے، خداوند کے کلام سے، خداوند کی ول سے لوگوں کو آشنا کرنا، اس سے اویئرنس دلانا ہے۔ بٹ مور امپورٹنٹلی یہ بات بھی ہے کہ ہم خداوند سے دعا کریں کہ جو لوگ خداوند کی مرضی سے آشنا ہوتے ہیں، خداوند کے کلام سے واقف ہوتے ہیں، وہ خداوند کے کلام کی، خداوند کی مرضی کی پیروی کریں، تابع داری کریں، اوبیڈینس کریں۔ کیونکہ اگر آپ سن کے بھی انسنی کر دیں، چاہے جانتے ہوئے، چاہے زمانے اور دوسری مصروفیات اور پریشانیوں کی وجہ سے، the bottom line is you are disobedient. I hope and I pray، میری دلی دعا ہے کہ جو بھی کلام کے اس پروگرام کو سنے، خداوند کی آواز کو سنے، وہ خداوند کی آواز کا شنوا ہو، اس کی پیروی کرے اور خداوند کے حضور نئے یروشلم میں جانے والا ہو۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے، یرمیہ کے 28ویں باب میں سے، کیونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں کس بادشاہ کے حوالے سے؟ صدقیہ۔ اب صدقیہ کا چوتھا برس، 5واں مہینہ، پچھلی دفعہ میں نے اس کے 5ویں برس اور 6ٹھے برس کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ ایک دو چیزیں بتائیں جو ازیکیل میں ہو رہی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یرمیہ کہاں پر ہے؟ یرمیہ جو ہے وہ یروشلم میں ہی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے کہ اسی سال شاہ یہودا صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے 5ویں مہینے میں یوں ہوا کہ جب بونی عزور کے بیٹے حننیہ نبی نے خداوند کے گھر میں کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کا جوا توڑ ڈالا ہے، 2 ہی برس کے اندر میں خداوند کے گھر کے سب ظروف جو شاہ بابل نبوکدنضر اس مکان سے بابل کو لے گیا ہے، اسی مکان میں واپس لاؤں گا۔ شاہ یہودا یکونیہ بن یہو یقیم کو اور یہودا کے سب اسیروں کو جو بابل کو گئے ہیں پھر اسی جگہ لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے
क्योंकि मैं शाह बाबल के जुए को तोड़ डालूंगा। अब ये वो प्रोफेसी है जो एक और शख्स नबी के तौर पर कर रहा है, हननिया नबी उसे कहा जा रहा है, और कॉन्ट्रडिक्शन है उस हवाले से जो यर्मिया कहते आए हैं कि बाबल ने आपको ओवरटेक करना ही करना है, उसके सामने हीलो हुज्जत ना करो, अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लो, अपनी कोताहियों का खुदावंद यहोवा खुदा के सामने एतराफ़ कर लो, तुम्हें माफ़ करेंगे। लेकिन ये जो काटने छाटने का अमल है जो बाबल की ज़ेरे निगरानी हो रहा है, इसमें से आपको गुजरना पड़ेगा। हननिया क्या कह रहा है कि नहीं, 2 सालों में एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहोवा खुदा हननिया को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं बकौल हननिया नबी के। यर्मिया वहां पर उसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि आमीन, अगर खुदावंद ने यानी यहोवा खुदावंद ने, अजीज़ो याद रखिए जहां पर भी इंग्लिश बाइबल में लॉर्ड एज इन कैपिटल लेटर्स आए और खुदावंद यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं इसराइल के खुदावंद की तरफ से, तो वो यहोवा खुदा ही है। यर्मिया कहते हैं कि यहोवा खुदा इन बातों को ज़रूर पूरा करे, अगर यहोवा खुदा ने तुझसे ये बातें कही हैं तो भी, अगर ये बातें पूरी हों तब उस नबी का कलाम पूरा हो तो फिल हकीकत खुदावंद ने उसे भेजा है, वगरना वो खुदावंद की तरफ से भेजा हुआ नबी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सलामती की खबर आप दे रहे हैं हननिया नबी साहब, ये जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इसको सच्चा नहीं मान सकते। बयान इसी तरह जिस तरह आजकल लोग झूठी सलामती की खबरें देते हैं, झूठी आपको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल समझाने की कोशिश करते हैं। झूठी क्यों? क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से नहीं है। दुनियावी कुछ असरो रसूख, दुनियावी कुछ पॉइंटर्स को देखकर आपको कुछ सच्ची कुछ झूठी बातें बताकर आपका फेथ तो हासिल कर लेंगे, लेकिन वो खुदावंद की तरफ से नहीं होगा। अच्छा, अब इस मौके पर हम देखते हैं हननिया नबी ने यर्मिया नबी की गर्दन पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। यर्मिया कैद में है। दिस शोज के जो सच्चा नबी है उस पर मुश्किलें रहती हैं, उसकी बात को लोग सुनते नहीं हैं। इवन यहाँ पर हम यर्मिया को कैद में देख रहे हैं और हननिया उस जुए को, उस बोझ को, उस काठ को उस पे से तोड़ के कहता है कि जैसे ये तोड़ा गया है इसी तरह बाबल का जुआ यहूदा की गर्दन पर से, यहूदा की ममलकत की गर्दन पर से तोड़ा जाएगा। यर्मिया नबी इस मौके पर खामोश रहते हैं और अपनी राह लेते हैं। ताहम खुदावंद का कलाम, यहोवा खुदा का कलाम यर्मिया पर नाजिल होता है कि जा और हननिया से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने लकड़ी के जुओं को तो तोड़ा है, पर उनके एवज में लोहे के जुए बना दिए हैं। क्योंकि रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं उन सब कौमों की गर्दन पर लोहे का जुआ डालूंगा ताकि वो शाह बाबल नबूकदनेस्सर की खिदमत करें, बस वो उसकी खिदमत गुजारी करेंगे और मैंने मैदान के जानवर भी उसे दे दिए हैं। तब यर्मिया नबी हननिया नबी से कहते हैं, ऐ हननिया, अब सुन, खुदावंद ने यानी यहोवा खुदावंद ने तुझे नहीं भेजा, लेकिन तू इन लोगों को झूठी उम्मीद दिलाता है। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं तुझे रूए ज़मीन पर से खारिज करूंगा, तू इसी साल मर जाएगा, क्योंकि तूने खुदावंद के खिलाफ फितना अंगेज बातें कही हैं। चुनाचे उसी साल के 7वें महीने हननिया नबी मर गया। What a tragic end, but this is what happens when people tell lies. अजीजों, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो मसीही कहलाते हैं, जो पास्टर, डॉक्टर, रेवरेंड, पता नहीं क्या कुछ कहलाते हैं, और वो खुदावंद का नाम लेकर झूठी नबूतें करते हैं। खुदावंद के खौफ की ज़रूरत है। हम बहुत सी जगहों पर ऐसे लोगों से भी वाकिफ़ हैं जो शायद दुनियावी टाइटल ना रखें, लेकिन जोश में आकर होश खो बैठते हैं, और जब गीत गाए जा रहे हों, परस्तिश हो रही हो, वो समझते हैं कि जो उनकी सोच है वो खुदावंद की तरफ से है, और आकर पुलपट पर वो दावे करते हैं कि खुदावंद ने उन्हें ये कहा है, thus says the Lord, ये खुदावंद ने कहा है, ये हो जाएगा। और मैं डरता हूँ इन चीज़ों से, मैं खौफ खाता हूँ। खुदावंद इन बातों को पूरा करे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आपके दिल की ख्वाहिशात हैं और ये अगर आपके दिल का झूठ है कि आप लोगों की दायकियाँ खाएं या लोगों के सामने बड़े पॉपुलर हों, शोहरत हासिल करें, आपकी लाइक्स बढ़ें, आपके फॉलोअर्स बढ़ें, तो खुदावंद का खौफ करें, क्योंकि वो जो हननिया को मार सकता है वो आप झूठे नबियों को, आप झूठे काहिनों को, आप झूठे लीडर्स को भी मार सकता है। याद रखें अजीज़ों, हम सबों को खुदावंद के खौफ की ज़रूरत है। और
सब काहिन, सब लीडर, सब नबी झूठे नहीं, लेकिन हमें इस हवाले से खुदावंद के कलाम की रहबरी और रहनुमाई हासिल करनी है और उसके आईने में उसकी कसौटी के मुताबिक सबको जांचना है। सो ज़रूरी क्या है कि हम खुदावंद के कलाम से वाकफियत हासिल करें। यही कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी उस वक़्त है जब हम इससे वाकिफ़ होंगे, जब हम इस रोशनी से वाकिफ़ होंगे और ये रोशनी हमारे जहनों, हमारे दिलों, हमारी ज़िंदगियों में होगी। वगरना कलाम तो रोशन है, लेकिन अगर हम उस रोशनी को अपनी ज़िंदगी में ले ही नहीं रहे, कलाम को पढ़ ही नहीं रहे, कलाम से वाकिफ़ ही नहीं हो रहे, तो फिर वो रोशनी आपके लिए, मेरे लिए बेफ़ायदा है। लेट अस लाइट दैट लैम्प इन आवर लाइव्स, ताकि गुमराही की, जहालत की, नापाकी की, नारास्ती की, झूठ की तारीकी ख़त्म हो। अब इसी कॉन्टिन्यूटी में, इसी तसलसल में हम 21वें बाब यिर्मयाह 21 में जाएंगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ जब सिदकिया बादशाह ने फशूर बिन मलकिया, सफनिया बिन मासिया काहिन को उसके पास ये कहने को भेजा कि हमारी खातिर खुदावंद से दरियाफ्त कर, क्योंकि शाह बाबिल नबूकदनेस्सर हमारे साथ लड़ाई करता है। शायद खुदावंद हमसे अपने तमाम अजीब कामों के मुआफिक ऐसा सलूक करे कि वो हमारे पास से चला जाए। इसी कश्मकश में है कि किसी तरह बाबिल से जो है नबूकदनेस्सर से हमारी जान बख्शी हो जाए। याद रखिए, मैं बारहा बता चुका हूँ, मुख्तसरन दोहराए देता हूँ कि बाबिल बार बार आता था, इनको मारता था, इनकी चीज़ें उठा के ले जाता था। फाइनली इनको वो जब लेके जाता है, उससे पहले सिदकिया की और लोगों की और झूठे नबियों की यही ख्वाहिश थी कि बस ये झूठी हो शायद, लेकिन यिर्मयाह उनसे कहता है तुम सिदकिया से यूं कहना। 3rd वर्स से आगे मैं पढ़ रहा हूँ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं लड़ाई के हथियारों को जो तुम्हारे हाथ में हैं, जिनसे तुम शाह बाबिल और कसदियों के खिलाफ जो फसील के बाहर तुम्हारा मुहासरा किए हुए हैं लड़ते हुए फेर दूंगा, और मैं उनको इस शहर के बीच में इकट्ठे करूंगा, और मैं आप अपने बढ़ाए हुए हाथ से और कुव्वत बाजू से तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा, हाँ कहर गज़ब से बल्कि कहर शदीद से, और मैं इस शहर के बाशिंदों, इंसान और हैवान दोनों को मारूंगा। सो खुदावंद का मैसेज ये है। बेहतर था कि वो मार ना खाते बल्कि बाबिल की अतात गुजारी कबूल कर लेते, क्योंकि वो टाइम वो है जो खुदावंद उनको काटना, छांटना और सिखाना चाह रहा है, तंबीह कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए। और इसी तनाज़र में 12 to 14 वर्स में आपके लिए पढ़ता हूँ। ऐ दाऊद के घराने, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुम सवेरे उठकर इंसाफ करो, मजलूम को जालिम के हाथ से छुड़ाओ, मुबादा तुम्हारे कामों की बुराई के सबब से मेरा कहर आग की तरह भड़के और ऐसा तेज़ हो कि उसे कोई ठंडा ना कर सके। खुदावंद उनसे क्या चाहते थे कि उस मुल्क में इंसाफ हो, लोगों के साथ भी और खुदावंद के दिए हुए कलाम के साथ भी। जब इंसाफ नहीं होता, जब जस्टिस नहीं होता अजीज़ों, तो बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। आप जिस मुआशरे में हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मगरबी दुनिया, मशरकी दुनिया, आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे और आप एक्नॉलेज करेंगे कि जहाँ आपके माशरे में इंसाफ नहीं है वहाँ पर बहुत सी बुराइयाँ हैं। और इसी हवाले से, इंसाफ के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत किताब है बाइबल मुक़द्दस में, कुज़ात की, काजियों की, जजेस की। कुछ दोस्तों के कहने पे मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ, दोहराई कर रहा हूँ, रिवाइज़ कर रहा हूँ एक और बाइबल स्टडी में। और वो बताती है कि इंसाफ ना होने के बायस इंसानी ज़वाल किस कदर शदीद हो जाता है, यहाँ तक कि आप ग़ुलामी में चले जाते हैं। खुदावंद के साथ इंसाफ और खुदावंद के लोगों के साथ इंसाफ इज़ वन ऑफ द की थिंग्स। जब वो नहीं होता तो आप देखिएगा कि कैसे मुआशरे, कैसे कौमें ज़वाल, पस्ती, गिरावट का शिकार होती हैं। बहुत से हालिया वाक़यात आपने देखे होंगे, आपका दिल दहल जाता है कि किस तरह लोगों को मारा जाता है, लोगों को अदम बर्दाश्त की बिना पर तशद्दुद किया जाता है, और खुदावंद के कलाम के साथ भी नाइंसाफ़ी की जाती है। ये नाइंसाफ़ी तो है कि जब उसे गलत तौर पर इंटरप्रेट किया जाए,
غلط طور پر اس کی تشریح اور تفسیر کی جائے، اور خداوند اس بات سے وارن کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس سے بچو، انصاف کرو، سویرے اٹھ کر انصاف کرو، خدا کے ساتھ بھی اور خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔